हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो हम लोग आज एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड रिवीजन फुल टेस्ट थर्ड अटेम्प्ट करने वाले हैं टेक्स्ट बुक से। सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज। आई हैव रेड एंड आई एम रेडी टू बिगिन। लेट मी स्विच ऑफ द फुल स्क्रीन। इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इंट्रोड्यूस होगा। सेव नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। Bidding farewell to me, my juniors wished me a bright and a successful career ahead. Bidding farewell to me, my juniors inquired तो होगा नहीं। My juniors said to themselves, my juniors said to me, wish you a bright, successful. इसको बाद में करेंगे। The teacher has prepared the lessons. The lessons have been prepared by the teacher. They cried out, bravo, it is a capital hit. They exclaimed in applause, मतलब कुछ applause किया है। और ऑफ रिलेटेड टू द मून से रिलेटेड लूनर होता है। नेक्स्ट, साइमन हैड ऑलवेज बीन एन आर्डेंट फॉलोअर। आर्डेंट मतलब बहुत ही पैशनेट फॉलोअर है। दिस, समटाइम्स वी इंटरैक्ट टू पीपल हु आर क्लोज माइंडेड एंड नॉट विलिंग टू लिसन। sometimes we interact to people who are closed minded, I think who are narrow minded होना चाहिए, not willing to listen. Da Vinci's painting reveal an obsessive fascination with dash rituals like those of the Freemasons. With magnetic rituals तो होता नहीं। pathetic, static, enigmatic, I think enigmatic होना चाहिए। mark for review रखती हूँ। you are not allowed to sit here without permission. टेंडरनेस, टेंडर मतलब बहुत सॉफ्ट होता है। इसका साइनोनियम क्या होगा? काइंडनेस होना चाहिए इसका। नेक्स्ट है, द क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्टेड इन, आई थिंक कोई इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेल इन ऑनलाइन क्लासेस टेकिंग फुल्ली एडवांटेज तो नहीं होना चाहिए, टेकिंग फुल एडवांटेज होना चाहिए। मूव द गोल पोस्ट, unfairly alter the conditions or rules or of a procedure during its course. Do your research and understand clearly what your goals are. I think यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको। इसको बाद में करते हैं, या इसको कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा पैराजम्बल है। किससे स्टार्ट है? DDCA। डी देखते, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद is credited, DA is credited with saying if you want to leave your footprint on the sands of time, do not dry your feet. Very nice. Antibiotics are one of double F नहीं होना चाहिए, one of the single F होना चाहिए। She smashed a dash of glass with a metal, she smashed a pane of glass, होमोनियम है। That fellow pushed me so hard that my vision got blurred for a second. Give somebody a leg up. To pull someone down, to deceive and betray someone, to help someone for their livelihood, to help someone to become successful. वो help तो लग रहा है कुछ नहीं होगा। I think to deceive, give somebody a leg up. I think मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ इसको। Many forests are cleared to make a way for palm oil plantation. Palm oil is the most commonly produced vegetable oil and is found in half of all supermarket products. It's cheap, versatile and can be added to both होना चाहिए, to both food and personal products like lipstick and shampoo. Are its popularity has prompted, delighted, has prompted people to clear, has I think prompted people to clear tropical forest to grow more palm trees. मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको। अब जो क्वेश्चन छोड़ा था वो उस पे आते हैं, दैट इज सेकेंड नंबर। अब इसमें क्या है? ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, टू पार्ट्रिजेस कोयल लाइक बर्ड्स लिव्ड इन अ सर्टेन ट्री इन अ जंगल वाइल वन ऑफ देम लिव्ड ऑन द ब्रांचेस, द अदर लिव्ड इनसाइड अ होल एट द फुट ऑफ द ट्री। क्यू या एस से स्टार्ट होगा, तो पहले क्यू से स्टार्ट करते हैं।
They became good friends, and they would spend long hours with each other telling each other stories and events of their lives. क्यों के बाद इनके हिसाब से आर है. In this manner, the partridges spend their time in happiness. Okay, फिर P देखते हैं. One day, one of them went away with some more partridges in search of food. Okay, QRP. As usual, when we didn't when हाँ यही होगा QRPS. Next, fourth number. Okay, इसमें in the Indian rupee rose to an over 1 month high against US currency on Tuesday, spurred foreign inflows into the local debt and equity markets. R है या SR से स्टार्ट करते हैं. The rupee closed at 79 per dollar compared to the previous one closed at 79, notching up to the best session of this month. R के बाद इनके हिसाब से P है या फिर S है. P देखते हैं. By comparison, the Chinese yuan and the Indonesian rupiah were barely changed. फिर Q. A trader at Mumbai-based state-run bank said the rupee managed to open above the 70.94 level, which was an additional trigger for the USD. Okay, PRPQS. Local currency reached 79 around the middle of the session and high. पता नहीं क्या है S. Hopes for the, I think यही मैं लगाती हूँ. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं और पार्ट बी में जाते हैं. दैट इज योर जीके. फेमस पोर्ट टाउन. पोर्ट है तो लोथल है. नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म द 6 पार्ट्स ऑफ द इंडियन 6 सिस्टम्स ऑफ द इंडियन फिलोसफी. मीमांसा, वेदांता, न्याय, वैशेषिका. लोकयाता और कपिल का नहीं है कुछ. अलान ट्यूरिंग, एंटोन एवी लवेशर जो है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है. मतलब पहले ABCD, ये तो तुम्हारे बी जो AB हैं वो तुम्हारे जेनेटिक्स से रिलेटेड है, यानी बी का तो 2 होगा. आइजैक न्यूटन इज रिलेटेड टू व्हाट? फिजिक्स के इन्होंने लॉज दिए थे, तो लॉज ऑफ मोशन. थर्ड हो गया. ग्रेगर मेंडल, सॉरी ग्रेगर मेंडल है वो, ये फर्स्ट है. और ग्रेगर मेंडल है जेनेटिक्स. और एलन ट्यूरिंग है कंप्यूटर्स. एलन ट्यूरिंग 4. और बी क्या है? एवी लोवेशर है रिलेटेड टू केमिस्ट्री. तो 4-3-1-2 ऑप्शन. 4-3-1-2 4-3-1-2 थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. ऐसा होता है क्या? नहीं, एल्टीट्यूड बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. पहला तो गलत है. तो पहला गलत होते ही ओके. द लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स. नहीं, ये गलत है. द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बींग्स इज ग्रेटर एट द फिट, एंड आई थिंक थर्ड ओनली इज करेक्ट. 7. Next. Global Gender Gap Index, I don't know. The book Coaching Beyond My Days with Indian Cricket Team is authored by R. Sridhar and forward is My Days with Indian Cricket Team. ये कोई कोच होंगे. तो सचिन तेंदुलकर तो होंगे नहीं, VVS लक्ष्मण भी नहीं होंगे. आई थिंक राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली में से एक हैं. मेरे ख्याल से सौरभ गांगुली लगाऊंगी बिकॉज ही वॉज ऑल्सो द कोच. मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ. नहीं, मुझे ऐसा लगता है राहुल द्रविड़ है ये. मार्क फॉर रिव्यू. नेक्स्ट. सर्वपल्ली राधाकृष्णा एंड C. Rajagopalachari were the first recipients of the Bharat Ratna. Sachin Tendulkar was the first and the only cricketer. हाँ, ये तो सही है. बोथ सही हैं, बोथ करेक्ट. नेक्स्ट. ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी कौन से 5-year प्लान में था? दिस मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा. नेक्स्ट. द बाथुकम्मा तेलंगाना का फेस्टिवल है. आर्टिकल डिस्क्रिशन गिव्स डिस्क्रिशनरी पावर टू गवर्नमेंट. गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर कौन सा देता है आर्टिकल? 120. एक मिनट. 123 + 89 करो अगर, तो क्योंकि 123 जो होता है वो प्रेसिडेंट को देता है, तो 202 आएगा. 212 आ रहा है इसमें. मैं 202 लगाती हूँ. मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ इसको. राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल. रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल, हाँ ये सही है. पहला सही है. राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट. राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनल स्टेटमेंट. आई थिंक पहला ही सही है, बाकी गलत लग रहा है. वॉट वॉज द आदित्य L1 ऑब्जर्वेशन क्या बनाई गई थी? It detected a new form of solar energy, suns. It made a record around, I think, Lagrange point for twice. ये है. There are 4 Grand Slam titles in tennis tournament. हाँ बिल्कुल सही है. First Grand title is US Open. US Open पहला नहीं है, Australian Open पहला होता है. The Australian US Opens are played on clay courts. पहला सही है. पहला सही है और सिर्फ पहला ही सही है. नेक्स्ट.
ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टन बैक्टीरिया मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. ओन फूड करेंगे तो दे आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट है सवाना लाइक इकोसिस्टम. करेक्ट क्या है? दिस कैटेगराइज बाई large grasses and trees. It forms a canopy not allowing sunlight. The largest trees of savanna is Africa, South America, Australia, India. नहीं, ये लास्ट वाला तो गलत हो गया है. लास्ट वाला गलत है, थर्ड वाला गलत है, सेकेंड वाला सही हो सकता है. टेम्परेट ग्रासलैंड है कि ट्रॉपिकल है, मेरे को ये श्योर नहीं है. आई थिंक इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द ग्रासेस एंड लार्ज ट्रीज. मेरे ख्याल से सेकेंड वाला है. मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको तो नहीं. अरे यार ये क्या कर रही हूँ. सेवन नेक्स्ट. नेम द कमिटी दैट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू एग्जामिन द फ्रेमवर्क रिगार्डिंग वर्चुअल करेंसीज. नहीं पता ये. एनसीएसटी के बारे में बताना है. इज अ मल्टी मेंबर बॉडी. हाँ ये तो है. चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म. दोनों सही हैं. सेवन नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन? रस्टिंग है, हाइड्रेशन, कंबशन और लाइटनिंग. आई थिंक लाइटनिंग नहीं है. नेक्स्ट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मुद्रा बैंक विच वॉज रिसेंटली सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड रिफाइंस टू माइक्रो इंटरप्राइजेस? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नॉट करेक्ट? न्यूट्रॉन्स मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन मास. न्यूट्रॉन possess zero charge. न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियाई. न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. फॉर विच बुक डिड गौरव पांडे साहित्य पुरस्कार? नहीं पता ये. वाइट कंसिडर वाइट मार्बल्स आर यूज. ये भी नहीं पता. एक मिनट. वाइट मार्बल्स बुलंद दरवाजा में वाइट मार्बल्स यूज हुए थे. रेड स्टोन मार्बल्स वर यूज्ड इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ. आई थिंक बोथ सही है. मार्क फॉर रिव्यू. नागा. हाँ इसको करते हैं. 1 2 3 4. नागा अर्जुन सागर तो डैम है वो सॉरी कृष्णा रिवर में है तो दैट इज बी. हीराकुड डैम महानदी में तो दैट इज ए. तेहरी डैम भागीरथ में है तो दैट इज डी. और इडुक्की डैम जो है वो सी. तो BADC. कौन सा ऑप्शन है? BADC लास्ट ऑप्शन. नेक्स्ट. Act of 19 is not correct. It provided dominion status India and Pakistan. A boundary commission was set up under Ratcliffe. Both dominions were to have appointed Governor General by British King. यही गलत है. Would control the till the constitution is made. I think Governor General नहीं, dominions को नहीं Governor General appoint हुआ था. नहीं हुआ था तभी सी राजा गोपालाचारी हमारे आखिरी गवर्नर जनरल थे. आई थिंक ये आंसर होना चाहिए. मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. मैं पार्ट ए पे आती हूँ. दैट इज रीजनिंग. 4 6 8. 4 2 जा 13 2 जा 10 -4. आई थिंक 16 होना चाहिए. मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. हाउ मेनी ट्राइंगल्स? इसको बाद में करते हैं. इसको भी बाद में करेंगे. 5 बॉयज़ हैं. फरहान इज़ एल्डर मान लेते हैं. ये ऐसे कुछ है. डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करते हैं. फरहान इज़ एल्डर देन ओनली अमन. तो मतलब फरहान सिर्फ अमन और बमन से ही बड़ा है तो फरहान बीच में होगा. और अमन या तो यहाँ होगा या तो बमन यहाँ होगा. दमन इज़ यंगर देन ओनली चमन. दमन जो है सिर्फ चमन से छोटा है यानी दमन चमन यहाँ हो गया. तो फिर कह रहा है कि अमन इज़ नॉट द यंगेस्ट तो अमन ये बमन ये हो गया. अब क्या बोल रहा है? हाउ मेनी बॉयज़ आर एल्डर देन अमन? अमन से बड़े कितने बॉयज़ हैं? 3. 7 नेक्स्ट. हीमोग्लोबिन आयरन तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है. 32 इंटू 6 कितना होता है? 32 इंटू 6 नहीं 32 इंटू 5. 5 2 ज़ा 10 या फिर 32 इंटू 4. 4 2 ज़ा 8. 128 + 1 तो 27 इंटू 4 +1. तो वैसे ही 289 - 1/4 मतलब 288/4 कितना होता है? 72. 7 नेक्स्ट. N होता है 14. K होता है JK इज़ 11 9 15 12 9. I होता है 9 6 और C होता है 3. K होता है 11 8 और 5. तो इसमें तो 3 का गैप है. ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3 और ये 2 है. नहीं ये -2 -3 -3 -3 पहला गलत है. नेक्स्ट. एज ऑफ मदर इज ट्वाइस दैट ऑफ एल्डर डॉटर. मदर की एज जो है वो एल्डर डॉटर से 2 गुना बड़ी है. 10 years फ्रॉम नाउ द एज ऑफ मदर विल बी थ्राइस ऑफ हर यंगर डॉटर. अच्छा यंगर डॉटर मान लेते हैं
कुछ वाई है, वाई प्लस ये तुम्हारी एल्डर है और ये यंगर है, वाई प्लस 3, या इसको ई लिख लेते हैं, एल्डर वाई प्लस, अच्छा, the 10 years from now the younger daughter, the age of mother will be thrice of younger daughter. If the difference between the ages of two daughters यानी elder minus younger is 15, what is the age of the mother? अच्छा, तो एक काम करते हैं हम, यहाँ से y को e के टर्म्स में e को y के टर्म्स में निकालोगे या y को e के टर्म्स में, तो e माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले वैल्यू में यानी m प्लस 10 इज इक्वल टू 3 e माइनस 15 प्लस 30, तो ये हो जाएगा m प्लस 10 इज इक्वल टू 3e माइनस 45 प्लस 30, तो यहाँ से ये माइनस 15 आ जाएगा और m इज इक्वल टू माइनस का 25 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2e इज इक्वल टू, या m इज इक्वल टू e की जगह लिख लो 3m m बाई 2 माइनस 25, तो 25 इज इक्वल टू 3m बाई 2 माइनस m, तो m बाई 2 हो जाएगा, तो 50 आएगा उसकी साल, 50 ईयर्स। सेवन नेक्स्ट, सम टाइगर्स आर लायंस, कुछ टाइगर्स जो हैं वो लायंस हैं, सम लायंस आर हॉर्सेस, सम हॉर्सेस आर कैमल्स, सम कैमल्स आर लायंस, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, नो कैमल इज अ लायन, तो आइदर 1 और 2। सेवन नेक्स्ट, 30, इसको बाद में करते हैं, नहीं बाद में क्यों करते हैं, 37 इंटू 3 होता है, 7 इज 21 प्लस 3 इज इक्वल टू 114, फिर इसमें इन्होंने क्या किया है, इंटू 3 किया है शायद, हाँ फिर इंटू 3 किया है, फिर समझ गए, मतलब 37 111 114 342 348 और 1044, तो ये इंटू 3 है, प्लस 3 है, फिर इंटू 3 है, और ये प्लस 6 है, 3488 इंटू 3 है, तो यहाँ पे प्लस 3 प्लस 6, तो आई थिंक प्लस 9 करेंगे, 1044 प्लस 9, तो 1053। सेवन नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। ई होता है 5, के होता है 11, इसमें बताना रॉन्ग कौन सा है, क्यू होता है 16 और 23 3 और आई, प्लस 6 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 7 प्लस 6 है ये, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये गड़बड़ है, ये वाला गड़बड़ है, क्यू एच एच, बिकॉज यहाँ पे अगर 17 हो जाता तो 6 हो जाता, ये भी 6, फिर ये तो 6, ठीक है समझ गया। सेवन नेक्स्ट, मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो आई विल चेक इट, बट लेट्स सी। मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर निकालना, 8 इंटू 2 16 माइनस 6 इंटू 3 अपॉन 3 माइनस 17, तो 16 माइनस 6 होता है 10 माइनस 17, मॉड है तो 7 आएगा, 7 का 6 से मॉड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। सेवन नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। डी होता है 4, डब्ल्यू होता है 23 डैश 12, एच होता है 8, ई होता है 5, सी होता है 3, बी होता है 2। इसको माइनस करें, तो ये 7 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, 4 और तो आई थिंक कि अगर 5 होके 76, ये 7 होके, तो आई थिंक ये 19 होना चाहिए, 19 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, आर होना चाहिए, तो फिर 23, ये तो 7 क्योंकि 30 होता है, और अगर मैं ओ रखूँगी तो 3 ओ तो नहीं होगा, P16 नहीं होगा, Q17 R18 अगर रखूँ तो 23 माइनस 5 और ये 6 हो जाएगा, 7566, नो आइडिया इसमें। सेवन नेक्स्ट करते हैं।
डू का बताना है, जस्ट डू इट इज कोडेड एज, अच्छा दोनों में कॉमन क्या है, सी टी एन एस के डब्ल्यू, और उसमें के डब्ल्यू कॉमन है, तो आंसर इज के डब्ल्यू। 7 नेक्स्ट, इसको करते हैं क्योंकि ये आसान होता है। राघव स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 10 पॉइंट ए से चलता है और 10 किलोमीटर नॉर्थ चलता है। ही टेक्स अ राइट टर्न, अब वो राइट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर वो राइट टर्न लेता है और 13 किलोमीटर चलता है। ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 7 किलोमीटर, अब वो राइट टर्न लेता है एंड ड्राइव 7 किलोमीटर्स, ठीक, ऐसे 7 किलोमीटर चलता है। ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड फाइनल कोई राइट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर चलता है एंड स्टॉप्स एट पॉइंट पी, ये सब एक ही लाइन में है। स्टॉप्स एट पॉइंट पी, हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए फ्रॉम पी, जाएगा तो ईस्ट जाएगा, 3 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर ईस्ट, क्योंकि ए से जा रहा है ना ये, ए से पी में जाना है, फ्रॉम में पी से ए में जाना है, तो 3 किलोमीटर ईस्ट। जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, इट वॉज इन्वेंटेड टू पंप आउट द वाटर फ्रॉम द फ्लड, हाँ दोनों ही सही हैं, बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। आर इज द वाइफ ऑफ के, मतलब आर एक फीमेल होएगी, ये हमको डिड्यूस करना है कौन से स्टेटमेंट में, आर जो है वो वाइफ है और के हस्बैंड है। पहला देखते हैं के और पी में, के इज द ब्रदर ऑफ पी, पी और टी में क्या रिलेशन है, पी इज द फादर ऑफ टी, टी और आर में क्या रिलेशन, टी इज द डॉटर, पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, के और पी में क्या रिलेशन है, के इज द फादर ऑफ पी, पी और टी में क्या रिलेशन है, पी इज द ब्रदर ऑफ टी, टी और आर में क्या रिलेशन है, टी इज द डॉटर ऑफ आर, यही सही है। 7 नेक्स्ट, इसका मिरर इमेज बताना है। पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा होगा। 7 नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे। 17, 17 +3 +10 प्लस, अच्छा 17 20 30 45 71 और 106, 17 +3 +10 +15 745 करेंगे तो 6 26 35, इसके करेंगे तो +7 +5 +11 और +9, फिर करो अगर तो -2 +6 -2, तो ये +6 होगा यानी ये 15 आएगा, तो अगर इसमें करेंगे 15 तो 50 आना चाहिए, फिर अगर 106 + 50 करोगे तो 156, 156 इज द आंसर। 7 नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। अब ये करते हैं इनइक्वालिटी W और T, देखो ये हमें पता चल रहा है कि W इज ग्रेटर देन C और T, तो ऐसा कोई डिड्यूस तो पहला स्टेटमेंट गलत है। C और M में क्या रिलेशन है, C ग्रेटर देन, ये C और M, क्या C M से बड़ा है, हाँ सेकंड वाला ही सही है, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। 7 नेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी, इसको बाद में करते हैं, दे देखते हैं। AMSR, AMSR, फिर A ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर इधर गया, एट, ये अगर ऐसे है तो @ जो होगा वो इधर होगा, ये तो तय हो गया, यानी कौन सा सही होगा, लास्ट वाला। 7 नेक्स्ट, 11th वाला क्या है, द US रिकॉर्डेड नियरली 1,15,000 न्यू कोरोना वायरस केसेस इन सिंगल डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन मंडे, विद सम स्टेट्स एंड सिटीज इन इम्प्लीमेंटिंग टफर section restrictions to curb the spread. There will be a lockdown for a week in New York. Over 1,15,000 new coronavirus cases are present in US on Monday. Will the first time, I think ये सही है. New York would be in lockdown for 7 days. For a week in both conclusion follow कर रहे हैं. Either 1 or 2. एक second. Either only
ओनली नियरली, तो ओनली पहला गलत हो गया, सॉरी, सेकंड सही है। 7 नेक्स्ट। 14 नंबर क्या है? 14, the sales of a specific product sold by company X has decreased in recent times much to companies concerned. The company should conduct a proper study of other competitive products in the market. The price of the product should be decreased and maintaining a desirable quality. Sales of the specific product sold by the company X has decreased in recent times much to the company's concern. Okay. प्रोडक्ट का सेल खत्म कम हो गया है। द कंपनी शुड कंडक्ट अ प्रॉपर स्टडी फॉर द कॉम्पिटिटिव अदर, आई थिंक फर्स्ट सही है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी डिक्रीज्ड वाइल मेंटेनिंग द डिजायरेबल क्वालिटी। प्राइस को डिक्रीज कर देने से ऐसा क्या होगा? कोर्स ऑफ एक्शन जो लिया वाइल मेंटेनिंग अ डिजायरेबल, आई थिंक बोथ फॉलो कैन बी द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शंस। मार्क फॉर रिव्यू। नेक्स्ट इसको बाद में करते हैं, ये देखते हैं। यू एनकाउंटर एन एंग्री कस्टमर एट अ शॉपिंग मॉल क्वेरलिंग विद द स्टाफ ऑफ द स्टोर अबाउट द अनहाइजीनिक प्रोडक्ट। व्हाट वुड बी योर फर्स्ट मतलब व्हाट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप? कैरी ऑन विथ योर वर्क? नहीं। थ्रू आउट ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ द मॉल? नहीं। ब्रिंग द इन्फॉर्मेशन नोटिस टू द मॉल अथॉरिटीज टू टेक नेसेसरी एक्शन अबाउट द हाइजीन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक। 23rd और 25th ये देखते हैं। Over the last 2 years, 22% of the company P's manpower was laid off. Over the past 2 years, company P has sold off many of the major assets. देखो दोनों जो है मेजर असेट्स को बेच दिया उसने, इसकी वजह से जो उसने 22% अपनी कंपनी का ले ऑफ किया। तो पहला कॉज है, दूसरा उसका नहीं, सेकंड कॉज है, दूसरा उसका पॉसिबल इफेक्ट है। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। पार्ट ए पे आते हैं, मतलब पार्ट सी पे आते हैं अब। इसको बाद में करते हैं। 7 नेक्स्ट। अल्फा बीटा एंड गामा द अक्यूट एंगल सच दैट साइन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 60 हो गई, बीटा की वैल्यू 30 हो गई और गामा की वैल्यू 45 हो गई। 5 69 4 13 135। 7 नेक्स्ट। लेट मी डू इट सम अदर टाइम, इसको बाद में करते हैं। फॉर अ प्रिज्म, फॉर अ, इसको भी बाद में करेंगे। नेक्स्ट 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 ये देखते हैं। ये आई थिंक 1 होगा बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब है ये, तो 1। पी इंटू क्यू यानी 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4 माइनस 5y की पावर 4। इसको सॉल्व करो तो 6x की पावर 4 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3y की पावर 4 माइनस 4x की पावर 4 माइनस 5y की पावर 4। 6 माइनस 4 होता है 2x की पावर 4 प्लस 9 प्लस 2 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2y की पावर 4। तो 2x की पावर 4 प्लस माइनस का 2y की पावर 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 7 नेक्स्ट। इन अ मिक्सचर ऑफ 660 लीटर्स, 60 लीटर्स है जिसमें से मिल्क और वाटर कंटेंट 50 है यानी 9 है, तो बचा 15% है। 15 60 का 15% 9 होता है, तो बचा कितना? 51 लीटर्स। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू इंक्रीज, कितना पानी ऐड करें टू इंक्रीज द वाटर कंटेंट इन द न्यू मिक्सचर? अब ये 20 हो और ये 80 हो, तो ये 1 होगा, ये 4 होगा। 51 इज इक्वल टू 36 माइनस 4x, 36 प्लस 4x, सॉरी 36 माइनस करो तो 5 और 4 माइनस 3 1 5/4, तो लगभग ये 3.75 जाएगा। 7 नेक्स्ट। ए और देखो A B C पार्टनरशिप में जाते हैं। 5/2 4/3 और 7/5। इसको सॉल्व करो तो इसका एलसीएम निकाल लो, तो ये 6 कितना आएगा? 30 आएगा। तो इंटू 15 इंटू 30 करोगे तो ये 75 आ जाएगा, और इंटू 30 करोगे तो ये 40 आ जाएगा, इंटू 30 करोगे तो ये 7 6 42 आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा दो। अब कह रहा है आफ्टर 6 मंथ्स ए इंक्रीज, 6 महीने बाद ए इंक्रीज इज शेयर बाय, तो मतलब ये 6 महीने तो करता है, फिर उसके बाद प्लस
फिर उसके बाद वो अपना शेयर जो है 151 प्लस 150 अपॉन 100 इतने टाइम इंक्रीज करेगा अगले 6 महीने के लिए। तो टोटल कितना होगा 75। 75 इंटू 6 कितना होता है, ये होता है 450। 450 प्लस इसको अगर काटें तो मतलब 75, 15/75 करेंगे और इसको 6 से करेंगे तो ये लगभग, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2.5। 2.5 इंटू 6, 2.5 इंटू 6 होता है 15। तो 75 इंटू 15 इज़ 1125 प्लस 1125 इसका आ जाएगा प्लस 450 करोगे तो 1575 ये आ जाएगा टोटल। और बाकी कितना है, बाकी सब तो 40 इंटू 12 करेंगे तो ये 480 आ जाएगा। और 12 to the 24 कैरी टू 48 to 504। फिर ये कह रहा है इसको कट करते हैं क्या, इसको 3 से करते हैं तो आई थिंक ये 525 आएगा और 160 आएगा और 504 को 3 से करेंगे तो 168 आ जाएगा। अब इसके आगे तो नहीं होगा ये। एट द एंड टोटल प्रॉफिट कितना हुआ फिर 168 प्लस 160 प्लस 525 तो मतलब 853 की वैल्यू कितनी हो गई, 85300। तो 1 की वैल्यू 100 हो गई। तो बी का शेयर निकालना यानी 16,000। नेक्स्ट इसको बाद में करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट्स A एंड B, यानी 2 प्लस x/2 की वैल्यू -4 हो गई और y -4/2 की वैल्यू हो गई 6। तो यहाँ से 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू -8 और तो x इज इक्वल टू -10। x की वैल्यू निकालनी है तो x -10 है। सेव एंड नेक्स्ट। a इज इक्वल टू, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो a b और c को 1/2 और 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6, 3 और 2। तो 6 + 3 9, 11 की वैल्यू 121 है तो 1 की वैल्यू 11 है। तो इसकी 66, 33 और 22 हो जाएगी। ये फाइनल वैल्यूज़ हैं। हमें क्या निकालना है, तो मतलब एक तरीके से 11 तो मतलब a का स्क्वायर यानी 36 प्लस 9 प्लस 4। 36 प्लस 9 25 होता है, तो 45 प्लस 4 49 यानी 7a। तो 7 इंटू 11 77। 7 नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। ए करता है 16 आवर्स में भरता है, बी करता है 24 आवर्स में और सी अलोन कैन फिल, और पाइप सी करता है 4 आवर्स में। तो इसका अगर 48 होंगे, 16 3 जा, 24 2 जा और 4 12 जा। इफ़ ए बी सी आर ओपनड 3 + 2 5 प्लस 3 + 2 5 + 12 17 x इज इक्वल टू 48। तो वो 100% फुल करने में 48/17 आवर्स लेते हैं। ये तुम्हारा 100% है तो 35% फिल करने में कितना समय लेंगे, 48/17 इंटू 35/100 ये हुआ। तो 5 7 ज़ा 520, 4 12 ज़ा 4 5 ज़ा, यही तो होगा। सी कैन, अरे यार सॉरी, ये तुम्हारा एम्प्टी कर रहा है, मतलब माइनस होगा ये। तो मतलब टोटल कितना होगा, 12 12 - 5 दैट इज 7x इज इक्वल टू 48। तो x इज इक्वल टू भरने में उसको 48/7, 100% भरने में, 100% भरने में 48/7 लग रहा है तो 35% भरने में 48/7 इंटू 35/100। 7 5 ज़ा और 1 ज़ा 20 ज़ा, तो ये 4 5 ज़ा और 12 ज़ा, 12/5। 12/5 इज़ 5 2 ज़ा 10 + 2 12/5। अ मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कैरियज फॉर, इतना हॉर्स प्लस कैरियज 80,000 में है। ही सोल्ड द हॉर्स एट अ गेन ऑफ 10% एंड कैरियज एट अ लॉस ऑफ, इसको करता है 10% पे यानी 0.9h और कैरियज को करता है 0.95c। ही गेन्ड 1% ऑन द होल ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू 8,000 का 1% कितना होता है, 8 इंटू 80,000 का
मतलब अगर मैं इसको 800 मान लूँ, 80800 ये है, तो इसमें एक काम करते हैं, इसमें मैं 0.9 का मल्टीप्लाई कर लूँ अगर, तो क्या हो जाएगा, 0.9h प्लस 0.9c इज इक्वल टू 72,000 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस माइनस, तो ये 0.05c इज इक्वल टू 008 10 माइनस टू 8। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आई थिंक इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स, एक सेकेंड, वो 1 मिनट, हॉर्स को 10% गेन में कर रहा है, मतलब 1.1h है। क्या कर रही हो यार, 1.1h प्लस उसको लॉस में कर रहा है। तो इसमें अगर मैं, हमको हॉर्स का प्राइस निकालना है ना, कॉस्ट ऑफ हॉर्स प्राइस, तो इसमें अगर 0.95 का मल्टीप्लाई करूँ तो 0.95h प्लस 0.95c इज इक्वल टू 800, मतलब 9, मतलब 0.95 में 80,000 करूँ तो 76,000 आएगा। और इसको मैं अगर माइनस करूँ तो 1.1 माइनस 0.95 कितना होता है, 0.15h इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 4800। तो इसको 0 आया, तो ये लगभग कितना आएगा, एच आ जाएगा 3 जा 2, 32,000 आ जाएगा, 32,000। सेवन नेक्स्ट है, विमेन इन्वेस्टेड सेविंग्स इन 2 पार्ट्स, इसको बाद में करते हैं। एक्स वॉज ऑफरिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स और 12%, एक्स कर रहा था, एक्स के लिए डिस्काउंट कितना है, 12 प्लस 8 माइनस 12 इंटू 8/100, तो 20 माइनस 0.96, तो ये आ जाएगा 19.04। ऑफरिंग अ फ्लैट, और वाई कर रहा है 20% का, डिफरेंस कितना हुआ, तो 20 माइनस करेंगे तो 0.96%। नेक्स्ट, ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन डू, ए करता है 40 दिन में काम, बी करता है 30 दिन में काम। दे हैव स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, ए फिनिश्ड। दोनों का अगर एफिशिएंसी देखोगे तो ये 3 होगी, ये 4 होगी। दोनों ने साथ किया बट ए फिनिश्ड, मतलब बी लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, और ए अकेले कर रहा है 5 दिन में, तो 120। तो 120 माइनस 15 कितना होगा, 105, और ये 7x इज इक्वल टू 105, तो x इज इक्वल टू 15, मतलब 15 दिन बाद छोड़ देता है वो एक तरीके से। सेवन नेक्स्ट, इसमें बताना है, अरे यार इसका मीन मोड मीडियन सब निकालना है, तो पहले तो मीन कितना होगा, इसको लिख, -1 0 1 2 3 5 5 6 8 10 11, दे आर अरेंज्ड राइट। तो 1 2 3 4 5 1, इसको तो कट जाएगा, 3 2 5 5 10 5 15, 15 प्लस 6 21 29, 20 29 प्लस 10 होता है 39, 39 प्लस 11 दैट इज़ 50, 50 अपॉन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 50 अपॉन 11, तो 50 अपॉन 11 है, तो मीन तुम्हारा हो जाएगा, मीन इज़ 50 अपॉन 11। ठीक है, और मोड कितना है, मोड इज़, मोड कौन सा सबसे ज़्यादा बार है, 5, और मीडियन कितना है, 11 है, तो यानी 1 2 3 4 5 5, मीडियन है 5, तो मीन, तो इसमें तुम्हारा मोड मीडियन के बराबर है, मोड मीडियन के बराबर है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हमें निकालना क्या है, x1/x+1। इसको बाद में करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। Ram standing on a railway platform noticed train took 36 seconds completely to pass through a platform which was 108 meter long to pass. Find the speed of the 108 मीटर लॉन्ग है प्लस ट्रेन की लेंथ अपॉन ट्रेन की स्पीड होगी कुछ, मान लेते हैं स्पीड एस है, उसको 36 सेकेंड्स लगते हैं और उसको पास होने में, यानी ट्रेन मतलब अब वो खुद है, तो ट्रेन की स्पीड अपॉन वो जो मतलब ट्रेन की लेंथ अपॉन स्पीड इज़ 12। तो स्पीड बतानी है तो यहाँ से स्पीड की वैल्यू आ जाएगी t/12। तो अगर मैं 108 प्लस टी अपॉन t12 = 36, ये जाएगा तो 3 जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3t, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2t = 2t। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 54। तो स्पीड कितना हो जाएगा 54/12। 54/12 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18, 1 ज़ा 3 ज़ा 15/12। क्या कर रही हो यार, 18/5, तो 12×5 = 60 होता है। तो अगर मैं देखूँ तो ये 10 ज़ा 9 ज़ा 18 × 9 होता है, मतलब 16.2 आएगा। नेक्स्ट है एवरेज हाइट ऑफ 25 बॉयज़ के एवरेज हाइट 150 है। इट वॉज डिटेक्टेड लेटर दैट वन वैल्यू, मतलब तो इसका हो जाएगा 375। इट वॉज डिटेक्टेड लेटर दैट वन वैल्यू 160 ग्राम, मतलब 160 ग्राम वॉज रॉन्गली कॉपीड एज -135 प्लस 160/25। तो यहाँ से पूरा ये आ जाएगा 3775/25। तो ये 1 जा जाएगा 151। सेव एंड नेक्स्ट। बहुत छोड़ा है इसमें। लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, 3 पॉइंट्स ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स इन अ सर्कल सच दैट, ये सर्कल है, इसमें कोई ट्राइंगल है ए बी सी such that the angle subtended by the chord AB and AC at center, AB और AB और AC at center are 90 डिग्री। अच्छा ये है, अच्छा chord A, ये कोई सेंटर है O, तो ये तुम्हारा 90 डिग्री है और AC chord से सबटेंड हुआ है 110 सबटेंड। तो ये कितना हो जाएगा 360 - 90 - 110, तो ये 160 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फर्दर सपोज द सेंटर ओ लाइज ऑन द इंटीरियर, फर्दर सपोज द लेंस इंटीरियर ऑफ बी ए सी के इंटीरियर लाई करता है, तो अभी भी तो इंटीरियर ही लाई कर रहा है। देन एंगल BAC कितना होगा, BAC 160/2 180। सेव एंड नेक्स्ट। AC इज़ अ डायमीटर फॉर सर्कल डिवाइडिंग, ये कोई सर्कल है, AC एक डायमीटर है जो कि 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर रहा है। ED इज़ अ कॉर्ड ऑफ वन सेमी सर्कल सच दैट ED इज़ पैरेलल टू, ये मान लेते हैं ED E के पैरेलल है। B इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इन अदर सेमी सर्कल, ये है B। CBE इज़ 75, CB और E ये तुम्हारा 75 है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ CED, CED का मेजर बताना है, CED ये बताना है, ये x है, तो ये भी x होगा फॉर अ कॉज। ये अगर डायमीटर है आई थिंक, ये अगर डायमीटर है तो
ये वाला 90 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 25 है, तो x, आई थिंक x वुड बी 75 प्लस 15 होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये 15 होगा। x 15, 7, मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको। बैग कंटेन ओनली रेड, रेड है, ग्रीन है और वाइट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल फ्रॉम द बैग एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी रेड सेलेक्ट करने की 1/3 है, वाइट सेलेक्ट करने की 1/2 है। अब उसमें ग्रीन 9 ग्रीन बॉल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द, तो देखो, वन पहले तो 1/3 प्लस 1/2 कितना होता है, तो 6, 5/6, तो ग्रीन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। ठीक है, 1/6 हुई। अब इसमें से हमको ये पता है कि टोटल 9 है, तो 9 इंटू 6 वुड बी द टोटल बॉल्स, 54। 7 नेक्स्ट। फ्रॉम अ प्रिज्म ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ साइड लेंथ, मतलब साइड है इतना, मतलब ए 7, तो एरिया वुड बी 49, हाइट है 10। अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर्स, ये तो प्रिज्म हो गया, प्रिज्म। अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर इज कार्व्ड आउट फ्रॉम द सिलेंडर ऑफ डायमीटर, सिलेंडर के लिए क्या होगा, पूरा वॉल्यूम, तो 22/7। आर स्क्वायर कितना होगा, इसका तो बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा 490। और यहाँ से देखें तो 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर होता है हमारा, आर के कहाँ गया, डायमीटर इतना है, तो 4.2/2 मतलब 2.1 इंटू 2.1 इंटू एच, तो यहाँ से आ जाएगा 7 3 जा, और एच कितना है, एच है 10, तो एक 10, तो एक यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 3 होता है 66, और 66 इंटू 21 करोगे तो ये होता है 1386, और मतलब 13, मतलब ये आ जाएगा 138.6। ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, ये प्रिज्म का वॉल्यूम है, तो माइनस करो अगर, तो 490 माइनस 138.6, 4153, 351.4। 7 नेक्स्ट। एक स्क्वायर गार्डन है, टू रोड्स पासिस थ्रू इट्स मिडिल, बोथ पैरेलल टू ईच अदर। क्या निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग, मतलब ये कुछ गार्डन है ऐसे करके, और ये 10 गिवन है, और ये पूरा 60 है, तो ये 10 है, और ये 10 है, ये ये 10 है, ये पूरा 60 है। तो अगर ये पूरा 60 है, ये 10 है और ये 10 है, आई थिंक ये इक्वली डिवाइड कर रहा है मिडिल में, तो बचा कुचा 50, तो ये हो जाएगा 25 और 25, ये 25 25, ये 25 25 25 25, और ये 10 है। फिर कह रहा है पैरेलल ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज दिस, विड्थ ऑफ द रोड इज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग द गार्डन एट द रेट, गार्डन को, ये ग्रासिंग द गार्डन, स्क्वायर गार्डन हैज़ 2 रोड्स, मतलब एक तरीके से ये निकालना है, तो इतने का एरिया कितना होगा, ये 25 इंटू 25 यानी 625 इंटू 4, 4 हिस्सों में है, तो 625 इंटू 4 करोगे तो ये 2500 आएगा, और इंटू 30, तो ये 75,000 आ जाएगा आंसर। 7 नेक्स्ट। मैन स्टैंडिंग एट द मिडल ऑफ अ रोड, ही, एक कोई मैन है, ये रोड के मिडल में खड़ा है। ही ऑब्जर्व्स एन एरोप्लेन एट इन द ईस्ट एट एन एंगल, ईस्ट में एरोप्लेन है जो कि वो 30 डिग्री पे ऑब्जर्व कर रहा है, एंड आफ्टर 1 मिनट्स ही ऑब्जर्व द सेम एरोप्लेन इन द वेस्ट एट एन एंगल ऑफ 60, 1 मिनट बाद यही एरोप्लेन 1 मिनट बाद वेस्ट में आ रहा है 60 डिग्री पे, इन द वेस्ट डायरेक्शन 1 मिनट बाद। इफ़ द एरोप्लेन फ्लाइज अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एट अ हाइट इतना, मतलब ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये 250√3, ये 250√3, और उसको यहाँ से यहाँ आने में, तो पहले तो ये निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, तो अगर ये x है तो 250/√3 इज इक्वल टू 250√3 अपॉन x इज इक्वल टू 1/√3, तो ये आ जाएगा 750।
ठीक है। और फिर अगर ये मान लो y है तो 250√3 अपॉन y इज इक्वल टू √3, तो ये 250 आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 1000 हो गई, 1000 मीटर। तो स्पीड कितनी होगी, 1000 मीटर है। और तुम्हारी वो 1 मिनट टाइम, उसको 1 मिनट लग रहा है, इसको यहाँ से यहाँ आने में 1 मिनट लग रहा है, तो 60 सेकेंड्स हो गया। तो 100/6 उसको मीटर पर सेकेंड इंटू 5/80, 18/5 सॉरी। तो 6 3 5, और ये 100, 300, 1 मिनट 20, तो 60 आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। 7 नेक्स्ट, 7 नेक्स्ट में 8th नंबर है। द मेडिसिन कैप्सूल इज़ इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर। ये कोई मेडिसिन कैप्सूल है और ये इस शेप में, जिसकी डायमीटर जो है वो 0.8 है, यानी रेडियस तुम्हारी हो गई 0.4 सेंटीमीटर। विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच एंड्स, 2 एंड्स पे हेमिस्फेयर हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, मतलब इस पूरे, ये जो पूरा कैप्सूल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी लेंथ है तुम्हारी 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस तुम्हारा इतना, ये भी 0.4 हो गया, ये 0.4 है, और ये 0.4 हो गया, तो ये भी 0.4। क्या निकालना, क्या है, कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल। कैपेसिटी क्या होगा, सेमी सर्कल पूरा सर्कल बना लेगा, तो 4/3 पाई, आर है तुम्हारा 0.4 का क्यूब, प्लस पाई पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू एच, आर स्क्वायर हो गया 0.4 का स्क्वायर इंटू एच। एच तुम्हारा अब 2 माइनस 0.4 0.8 हो जाएगा, क्योंकि ये 0.4 इधर गया इधर गया। तो अगर मैं, तो 2 माइनस 0.8 कितना होता है, 1.2 इंटू 1.2 हो गया। यहाँ से पाई ले लो कॉमन, और 0.4 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 4/3 इंटू 0.4 प्लस 1.2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 4 16/30, 16/30, और यहाँ पे 10 होगा, तो ये 12/10। 30 एलसीएम होगा, तो 16+15, 16+15 होता है 31/30, 31/30। तो ये 22/7 है। और ये इसको और काटेंगे अगर, 0.4, 0.4 होता है 0.16/100, 15, 11, और कटेगा ये, और तो कुछ कट नहीं रहा। ये अगर लगभग 2 हो जाए मान लो, ठीक है, क्योंकि 15 टू जा होता है, तो 16 टू जा 32 इंटू 11, दैट इज अपॉन 7 करेंगे, तो आई थिंक समथिंग रिलेटेड टू, कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं, मुझे 0.67 लग रहा है, मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ इसको, या फिर मैं कुछ गड़बड़। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, ये है कैप्सूल। अगर इस पूरे कैप्सूल की लेंथ अगर 2 है, तो मतलब, 1 सेकेंड, 1 मिनट, अगर मैं इसको पाए और 0.4 का स्क्वायर कॉमन लूँ, और यहाँ पे रखो 4/3 इंटू 0.4, तो 1.6/3 आएगा, ये तो यहीं से आ गया, प्लस, और ये आ जाएगा अगर 6, 1.6 प्लस 2 होता है 3.6/3, 3.6, तो डिवाइडेड बाई 3 होगा, ये तुम्हारा 1.2 हो जाएगा, 1.2। अब 1.2 इंटू 0.4 होता है 0.48, इंटू 0.4 करेंगे तो 0.192, 0.6 समथिंग। मैं फिर भी मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ उसको। नेक्स्ट, इन T years, सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट अ रेट ऑफ 10% इज 5/8। टाइम T है, सिम 5/8 P इज इक्वल टू P इंटू T इंटू 10/100। P से P कैंसिल, दिस, तो टाइम आ जाएगा 50/8, दैट इज 25/4, ठीक है।
फिर कह रहा है कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड 3/4 ऑफ 10%, अगर अब रेट है 3/4 × 10, तो 30/4% है, यानी 15/2% है। एंड सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम, और सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 5/8। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चेंज वैल्यू। तो अगर 5/8 इज इक्वल टू 1 × 15/2 अपॉन T/100, ये हो गया। तो 1 × 4 और ये 5 3, तो T हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 25/3 क्या चेंज हुआ है, एक टी ए है, तो 25/4 से 25/3 बनने तक का क्या है, तो टाइम बिकम कितना साल हो गया है। तो अगर मान लो ये x है इज इक्वल टू वॉट x, तो 4/3, 3/4 ऑफ टाइम, यही हुआ। तो दैट इज इट बिकम्स 3/4 ऑफ द टाइम। नेक्स्ट नेक्स्ट तो हो गया है। 16 नंबर क्या है, इसको करते हैं। इसको करने से पहले आई थिंक मैं रीजनिंग में स्विच करती हूँ। लेट्स सी रीजनिंग में जो जो छोड़े थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको 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 नहीं, मैथ्स में ही रहते हैं। गिवन एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें से ए बी और सी और ये डी है हमारा, जिसमें ये आई है और ये हमारा एफ है, और ये सी से जा रहा है और ये ई पे है। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी इज इक्वल टू, ये जो है वो ए सी के बराबर है। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। बी ए सी 72 डिग्री है, बी ए सी ये तुम्हारा 72 डिग्री हो गया। तो 180 में 72 घटाएंगे तो ये लगभग 108, और इसमें अगर 2 करेंगे तो ये 54 और ये 54 आ जाएगा। ठीक है। बी आई इज़ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। तो बी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 + a/2 इज इक्वल टू बी आई सी। तो a/2 यानी 36 यानी ये हो जाएगा, ये हो गई तुम्हारी 126। ठीक है। अब कह रहा है कि एंगल बाइसे डी सी ई इज इक्वल टू, डी सी ई कहाँ है, डी सी ई ये मान लेते हैं एक्स है, इज इक्वल टू डी बी आई, डी बी आई, डी बी आई, डी बी आई, ये एक्स है। तो ये मान लो अगर ये पूरा y हो गया, तो x इज इक्वल टू 2/3y। तो x अपॉन y की वैल्यू आ गई 2:2/3। ठीक है। फाइंड द आउटर रेडियस ऑफ ई एफ आई। ई एफ आई का आउटर रेडियस बताना है। ये है ट्राइंगल, इसका हमें आउटर रेडियस बताना है, मतलब सर्कम रेडियस बताना है। ई आई 3√2 है, ये तुम्हारा 3√2 हो गया। पता नहीं यार इसमें क्या लगाएंगे, आई हैव नो आइडिया। 7 नेक्स्ट 19 नंबर देखते हैं। अब वुमेन, उसके बाद 23 नंबर क्या है, ये था। तो हमने यहाँ से ये निकाला था x² + y² + z² इज इक्वल टू 2 टाइम्स x + y + z। अगर ऐसा है 2 2 2 2 4, अगर x को मैं ले लूँ 2, y तो 2 + 2 4 + 2 6 2 12 होता है, और 4 + 12, हाँ ठीक है। तो 1/3 + 1/3 + 1/3, तो 1 आ जाएगा आंसर। 7 नेक्स्ट 19 और 16 छोड़ा था, इसको छोड़ते हैं, पार्ट ए में आते हैं। ये है जैसे एस को क्या लिख सकते हो, 19 20 2 12 और 5। ए को लिख सकते हैं 1 5, ओ पी क्यू 17 18 26 और 10। विजुअल में वी को 22 9 19 21 1 और 12। तो अगर ये देखो तो 19 -2, 19 -2 और 1 22 -2 होता है 20, और ये 19, ये अगर 20 तो मतलब बीच में टी आएगा, टी हो गया। 2 + 8 21 + 8 29। ये नहीं आ रहा है।
इसको देखो, अगर डी होता है 4, 23 डैश, पहले तो 32, 34, 30, फिर डैश है, फिर 33 है, फिर 30 है, फिर 32 है, 29 है और 31 है, +2, +2, -3, +2, 18 -3 यानी 31 होगा, 31 होगा। और मुझे अब देखना पड़ेगा, आई थिंक Q31 लगाती हूँ मैं, मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। हाँ, सबमिट करते हैं, लेट्स सी हाउ मच, कौन कौन सी ब्लंडर्स करे हैं। इट्स 134.5 है मेरा स्कोर, लास्ट वाले से थोड़ा बेटर है, बट ये हो सकता था और बेटर। इसमें क्या रहा है मेरा स्कोर? रीजनिंग में 36 है, जीके में जीएस में 17.5 है, कॉइंस में 41 है और इंग्लिश में इतने हैं 40 हैं। तो लेट्स सी द सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन अगर देखें तो इसमें क्या लिख सकते हैं? 4, 4+6, 6+4, 4+9। इसका सोल्यूशन देखें तो 14 है। कैसे है इनका? फर्स्ट नंबर इंटू 1.5 इज इक्वल टू 6, 10 इंटू 1.5, फर्स्ट नंबर इंटू 1.5, तो मतलब 4 इंटू 1.5 6 के बराबर है, और 6 + 10 इज इक्वल टू 16। 6 इंटू 1.5 होता है 9, 9 + 4 13, तो 8 इंटू 1.5 होता है 8 इंटू 1.5 होता है 12, और 12 करेंगे तो हाँ 12 + 14 इज 26। ओके, इसमें ट्राइंगल्स निकालना था 1 2। देखो बहुत ही डिफिकल्ट, इसको बाद में देखते हैं, पहले जो गलत है वो देखते हैं। ये कैसे गलत है? ई, ई होता है 5, ई होता है 5 के, क्यू होता है 11, डब्ल्यू होता है 23 3, और आई होता है 9 डैश। तो 5 + 11 है 6, +6, क्यू होता है 17, +6, +6 23, +6 और 3 + 6 +6 होता है, ठीक। वी होता है 22 2, एच होता है 8 14 20 और 1, +6 +6 +6 14 20 +6 26 होना चाहिए, यानी IAP गड़बड़ है। अरे यार, बहुत ही सिली मिस्टेक, ये तो मेरी गलती थी। जेम्स वॉट इन्वेंटेड स्टीम इंजन? इट वॉज इन्वेंटेड टू पम्प्ड आउट वाटर फ्रॉम द फ्लडेड माइंस। फ्लडेड माइंस गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ए, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन नहीं किया था क्या? बट रीजन ट्रू है। स्कॉटिश हु इन्वेंटेड स्टीम इन वॉट स्टीम इंजन 1776। फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम इंजन्स वर डेवलप्ड टू रिमूव यूरोपियंस। केमिस्ट हु इम्प्रूव्ड टू, बताओ, ये नॉलेज मिल गई, ये मुझे नहीं पता था कि स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था थॉमस न्यू कॉमन ने, बट उसको इम्प्रूव किया था जेम्स वॉट ने। ओके, 25th गलत है। ओवर द लास्ट 22 years 22% ऑफ द कंपनीज मैन पावर वॉज लेड ऑफ। ठीक है, 2 साल से उसने, कंपनी ने अपने मेजर असेट्स बेचे, यही लग रहा था मुझे, डाउटफुल। इसको करेंगे अगर, तो ये क्या था? ये मैंने किया था ना सॉल्व, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये तो -2 है, ए ही रहा है, और ई ये जो है ये यही रहा है, और ये ऐसे ही रहा है, और फिर इसमें इसको रिलेट किया गया है, फिर 2 को किससे रिलेट किया है? इससे रिलेट किया गया है। 17 कहाँ गया भाई? 17 को इससे हो गया, और फिर बी को जेड से किया है, यानी ये जो 5 है, ये जो 1 है, ये 19 रहेगा, यानी ये तो 9 रहेगा, मतलब ये आई रहेगा,
और ये टी है। आई थिंक आई और टी जो है वो एक ही ऑप्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं इसको एलिमिनेशन से भी कर सकती थी। मैथ्स में आते हैं। मैथ्स में छोड़ा कौन सा था, ये था। अच्छा, इसको कैसे किया था? टोटल तो वो सर्कल था, मतलब अगर ये हमारे पास कैप्सूल ऐसे थी तो ये तो सेमी सर्कल बना लेगा, तो यानी 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो मतलब यहाँ से कॉमन ले लो पाई आर स्क्वायर, तो आ जाएगा 4/3 आर प्लस एच। तो आर कितना था? 0.4 पाई इंटू 0.4 का स्क्वायर अपॉन 1.6 3 प्लस एच। तो यहाँ से 22/7 आया, और इसको 0.16 लिख सकते हैं, 0.16। तो 16 2 = 32 कैरी 3, 16 32 कैरी 3, 16 32 + 3 35। तो ये 3.52 आ जाएगा, 3.52/7। और ये 1.6, और एच क्या होगा? एच तो यही होगा ना, लेंथ ऑफ द इंटायर। तो एच अगर 2 है, तो अगर ये 2 हो गया, तो 1.6 + 6 होता है 7.6/2, ये हो जाएगा 7.6/3। तो इसमें अगर मैं करूँ कुछ, क्या कर सकती हूँ? तो मतलब पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 352 × 76। पहले तो 6 2 = 12, 1 1 2, फिर इंटू 4 6 4 2 2 5 7 6 2, 1 3 है, तो 1 2 3/21। अगर मैं 21 से डिवाइड करूँ, तो एच तुम्हारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाइट जो होगी वो ये वाला तो कट जाएगा, ये भी कटेगा, तो इतना आएगा, यानी ये 0.4 और 0.4 कटेगा। तो 0.4 और 0.4 कटा, तो 0.8 कटेगा 2 सेंटीमीटर में, 0.8 घटाएंगे तो 1.2 आएगा। 1.2 हाइट इतनी 1.2 है। पाए इंटू 0.16, 1.6/3 प्लस 1.2, तो मतलब 3.6 + 1.6 होता है 5.2 इंटू 22/7। 16, ये हो जाएगा 16 32 कैरी 3, 0.832। फिर इसमें अगर 22 का मल्टीप्लाई करोगे तो 22, ये आ जाएगा 40381/21, लगभग 0.8, 0.8 समथिंग आएगा। तो आंसर वुड बी, हाँ ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक ही थी मेरी। 13 नंबर। क्यों भाई? ये था तुम्हारा कि 1 = 5/8 इंटू 10 इंटू T/100। तो यहाँ से T कितना आ जाएगा? 800, मतलब अगर ऐसे ले लो 800/50 आ जाएगा। 800/50, 800/50 यानी 16 आ जाएगा। ठीक है। दूसरे में क्या था? इंटरेस्ट सेम है, यानी क्या कर रही हो यार? मतलब 5/8 = 1 इंटू 10 इंटू T/100। तो T यहाँ से कितना आ जाएगा? T = 50/8। ठीक। उधर से क्या आ रहा है? 5/8 = 1 इंटू इंटरेस्ट, अब कितना हो गया है? 3/4 हो गया है। 10 इंटू 3/4 इंटू T/100, 0 0 कैंसिल, तो ये 3/40 हो जाएगा। तो इट वुड बी 40, 200/24, 8 इंटू 3 यानी 8 इंटू 3। तो मतलब 200/8 करोगे तो ये 25/3 हो जाता है, 25/3, और ये 25/4 हो जाएगा।
ये और ये कितना चेंज हुआ है, तो अगर 25/4 इज इक्वल टू एक्स टाइम्स 25/3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/4 थी तो हो गई है, 3/4 थी तो इट बिकम्स 3/4, 8 इज 24, इट इज इंक्रीज टू 25/3। 8 3 इज 25/3। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, मैंने गलत लगाया है इसमें। इसको करें अगर, बड़ा सा ट्राइंगल है ये मान लो, जिसमें से ये ऐसे गया, ए बी सी, ठीक है, हमें गिवन है बी ए सी, ये 72 गिवन था, तो हमने ये निकाल लिया 54 और ये 54 हो गया। ये 72 होते ही 90 प्लस ये, क्योंकि आई है, ये एंगल बाइसेक्टर था किसका, तो एंगल बाइसेक्टर अगर था इसका, तो ये तुम्हारा 27 हो जाएगा, मतलब ये 27 हो गया और ये 27, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 27 और 27, ठीक है, तो ये 126 था, ठीक। अब कह रहा है कि ये हो गया। अब ये देखो, ये ऐसे कुछ करके यहाँ पे भी था, विच इज़ एफ, ए एफ और ये ई है, डी सी ई इज इक्वल टू 2/3 ऑफ डी बी आई। जो तुम्हारा डी सी ई है, यानी डी सी ई कहाँ गया, कलर चेंज करते हैं, डी कहाँ गया, डी ये था, डी सी ई, दिस दिस मान लेते हैं एक्स है, विच इज़ इक्वल टू डी बी आई, डी बी आई, डी बी आई कितना है, 27 है, तो डी बी आई अगर 27 है तो 27 का 2/3 इंटू 2/3, तो ये 7 3 9 जाए तो ये 18 हो जाएगा, ये 18 हो गया, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब ई आई 3 रूट, ये जो है ये गिवन है 3√2, हमको बताना है आउटर रेडियस, इस ट्राइंगल का सरकम रेडियस बताना था। ये अगर 3√2 है, और क्या हो सकता है, ए बी ए सी के बराबर है, डी इज़ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये अगर इक्विलेटरल है तो ये भी, आई थिंक ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो अगर ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का सरकम रेडियस क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, तो यानी ए क्यूब अपॉन 4 इंटू √3/4, √3/4 ए स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, a/√3, a/√3, ए कितना है 3√2 अपॉन 3√2 अपॉन √3, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इज इट √6, नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता भी तो भी गलत है, आई थिंक इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होगा ये, मैं गेस है ये, दिस इज़ रॉन्ग। और क्या डिड्यूस कर सकते हैं इससे, सोल्यूशन देखते ही हैं कुछ भी लगा के। साइन ऑफ ई एफ आई, ये तो 18, यहाँ सब तो हम भी निकाल लिया था, सी एफ आई निकालना था इन्होंने, सी एफ आई, तो ये तुम्हारा 45 हो जाएगा, और ये गिवन था 3√2, सी एफ आई इतना हो गया, तो अच्छा, ये इस ट्राइंगल में एंगल ऑफ ई एफ आई, ये वाला ट्राइंगल ई एफ आई, यानी साइन मतलब साइन ऑफ ई एफ आई अपॉन ई आई इज इक्वल टू 1/2 आर। ये फॉर्मूला होता है तो ये मुझे नहीं पता था, तो ई एफ आई 45 डिग्री है, यानी 1/रूट इंटू 3√2 इज इक्वल टू 1/2 आर, RS3, ये फॉर्मूला मुझे नहीं पता था, आज पता चल रहा है।
ओके, तो सर्कम रेडियस निकालने का होता है साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू आर। तो ये होता है साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू 1/2 आर। दिस इज द फॉर्मूला। इम्पॉर्टेंट। 16th हो गया था, 19th छोड़ा था। इसको देखते हैं। इसमें क्या था, अ वुमन इन्वेस्टेड हर सेविंग्स इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में करता है, ए और बी। इसमें कर रहा है 11 9 99, मतलब 100/9%, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 8 years एंड 11 years। 8 years, 2 parts एट द रेट कंपाउंडेड 8 years। ये भी आई थिंक इतने ही परसेंट में कर रहा है क्या, 11 years। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन बोथ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल। ठीक, फाइंड द इफ द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट इज इतना, यानी ए इंटू 1 प्लस 100/900 यानी 1/9 की पावर 8 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 1/9 की पावर 11। ये बी है। तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1/9 क्यूब। तो ए अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 10/9 का क्यूब, यानी अपॉन 729। इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 100 माइनस 729 जो होता है, दैट इज़ मतलब 1000 माइनस 729 होता है इस 271। इसकी वैल्यू गिवन है 9485। फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब 9485 अपॉन 271 इंटू 1, टोटल कितना होगा 1729। आई थिंक ये कटेगा, ये 3 जा जाएगा और ये 5, और फिर 1729 इंटू 35 करो तो ये बहुत इजी था। आई शुड हैव डन दिस। 1729 इंटू 5 करेंगे अगर, तो 5468 इंटू 3 अगर करोगे तो 7815। तो इधर आ जाएगा 51506। ये करना चाहिए था बिकॉज ये कुछ डिफ़िकल्ट तो नहीं था। दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर मैथ्स ऑल्सो। रीजनिंग डिस्कस कर ली थी। अब जनरल अवेयरनेस का मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, और इसमें इंग्लिश में देखते हैं गलत क्या किया है। इंग्लिश में गलत किया था, पैराजम्बल गलत हुआ है, मैंने लगाया था आरपी, तो इसका आंसर ये होगा। लग ही रहा था। नेक्स्ट है मूव द गोल पोस्ट। मूव गोल पोस्ट क्या होता है, ये होता है अनफेयरली ऑल्टर द कंडीशन ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ड्यूरिंग इट्स कोर्स। ओके, एंटीबायोटिक्स आर वन ऑफ द, एंटीबायोटिक्स आर वन ऑफ द, ये होना चाहिए था। अरे यार, एंटीबायोटिक्स था, ये सिली मिस्टेक थी मेरी। गिव समबडी अ लेग अप, ये मुझे नहीं पता था, आई थिंक मैंने लगाया था टू डिसीव, तो क्या ये होगा टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल। ओके, ये इसका मतलब होता है गिव समबडी लेग अप का, किसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल्प करना। ठीक, सो दिस वॉज माई स्कोर 134.5 आउट ऑफ 200। एंड एनालिसिस कर ली है। जीएस के एनालिसिस मैं अलग से करके आप लोग से शेयर कर दूंगी विद प्रॉपर शीट, और जो कल की जीएस की एनालिसिस थी उसकी शीट मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। सो इफ़ यू विश आप वहाँ से देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में और इसकी एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स।